सवेरे सवेरे यार से मिलने घर से दूर चले हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। Hello everyone, I am Ashwini. On behalf of Josephine family, I heartily welcome to all of you for our Praveshanotsav program. Today is a great day. From today, our little kids start their learning. Today is their welcoming program. This is our Praveshanotsav program. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्यारा सा प्रोग्राम। God answers every prayer. Any small prayer can change a big situation. Prayer is a key to solve many problems in our life. तो हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम की शुरुआत हम भगवान की प्रार्थना से करेंगे। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे। जे सत्य सुंदर सर्वथा, जे सत्य सुंदर सर्वथा, आजन्म त्याचा ध्यास दे। तू बुद्धि दे, तू तेज दे। Though it's impossible to welcome you all with flowers, but we welcome you with words like flowers. Good afternoon to all. Myself Kalyani teacher. First, I want to say thanks to management who given me chance to present welcome speech. First of all, I would like to welcome here our manager Reverend Sister Mary, Reverend Sister Liji, Principal of Saint Joseph Convent School, Reverend Sister Jean C, Principal of Avila Kindergarten. Then I would like to welcome here our dear parents and dear students. At last, I would like to welcome our dear teachers. I heartily welcome to each one of you for this today's parents meeting. Here I wind up my words. Thank you. Let's see our little kids dance.
यारों से मिले ठन ठन के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले रोके से ना रुके हम बरसी से चले बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम Before Praveshanotsav ceremony, our sweet sister, Reverend Sister Jinsi, Principal of Avila Kindergarten, has something to tell you about this ceremony. Listen carefully. Dear respected sisters, teachers, my dear parents and students, Vidyarambham is one of many customs and rites practiced. Vidya means knowledge and Arambham means to start. Basically, Vidyarambham means the initiation of knowledge. Vidyarambham is one such rite. During Vidyarambham, a child aged between 2 and 4 years is introduced to the world of education. The purpose of this ceremony is to foster an enthusiasm for study in a child's mind from young age. The rite also highlights parents' responsibility for imparting knowledge to their children early. So, my dear teachers, students, and dear parents, I wish you a fruitful year together ahead. Thank you. A for B for C for Welcome to Avila Kindergarten. Good morning, teacher. Firstly, we write letters. मी करते. बोलायचं. A B for ball. तू नको बोलू मी. C. तू नको बोलू C. D. Thank you. बोल ना बेटा. हम सबको हमारी स्कूल याद आती है ना. हमारे स्कूल टीचर्स, स्कूल ग्राउंड, एवरीथिंग. ये यादें हम कभी नहीं भूल सकते. तो बच्चों, आप सभी स्कूल को मिस कर रहे हो ना. हम टीचर्स और सिस्टर्स भी आप सबको बहुत मिस कर रहे हैं. तो चलिए अब हम स्कूल में घूम के आते हैं.
जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजे स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल पल पर रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, स्कूल देगा, यूनिफॉर्म भी तुम्हारी। स्कूल देगा, स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, कम हो गए फासले, पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम। थोड़ा सा भी जो चले, प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे टीचर है ऐसे भले। सच 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 रीत अब है यही स्कूल की, कभी टीचर ना बच्चों को मारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। लाइब्रेरी में जो पढ़ना हो, स्कूल देगा, स्कूल देगा, दोपहर में खाना भी तो, और स्कूल देगा, स्कूल देगा। पढ़ना भी है और है खेलना भी है, दोनों बातें यहाँ। ध्यान उनका भी पूरा रखा गया है, ये जान ले लड़कियां। वो जो पढ़ेंगी, जो आगे बढ़ेंगी, तो बदलेगा हिंदुस्तान। घर 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 शिक्षा जब पहुंचेगी स्कूल की, शक्ति पाएंगे निर्बल भी सारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। शिक्षा मेरा अधिकार है। Let's introduce all our teachers. Hello, hello, and welcome back to school. You've made it through the summer, now there's work to do. So put a smile on your face and sing out with me. We're gonna have a good year, just wait and see. We're gonna have a good year, it's true. We're gonna have a good. देखो बच्चों, जहाँ स्कूल है वहाँ टीचर्स है, और जहाँ टीचर्स है वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है ही। ऑनलाइन टीचिंग रूल्स जो टीचर बताएंगे वो आपको फॉलो करना है। ऑनलाइन लेक्चर के लिए सभी ने टाइम पे रेडी रहना है और पहले ही तैयार हो जाना है। पेंसिल, नोटबुक, इरेजर, टेक्स्ट बुक साथ में लेकर बैठना है। हो सके तो हेडफोन यूज करना है ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे। टीचर स्क्रीन पे क्या दिखा रहे हैं और क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं वो मन लगाकर सुनना है, देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट रूल, किसी ने भी माइक्रोफोन ऑन करके बात नहीं करनी है। माइक्रोफोन म्यूट ही रखना है, क्योंकि अगर सब जन माइक्रोफोन ऑन करते हैं तो टीचर क्या पढ़ा रहे हैं वो किसी को सुनाई नहीं देगा और समझ में नहीं आएगा। और माइक्रोफोन ऑन करने से बाकी पेरेंट्स का टाइम वेस्ट हो जाएगा।
ऑनलाइन क्लास के बीच कोई कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, बिल्कुल डिसिप्लिन से बैठना है। पेरेंट्स ने स्टूडेंट्स के साथ बैठना है। टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, स्टोरी, राइम, कन्वर्सेशन, जीके क्वेश्चन आंसर और दूसरा कुछ सब्जेक्ट का क्या पढ़ा रहे हैं, वो माइक्रोफोन म्यूट रखकर मन लगाकर सुनना है और माइक्रोफोन म्यूट रखकर ही रिवाइज करना है। पेरेंट्स ने स्टूडेंट्स की तरफ ध्यान देना है। जहाँ अच्छे से रेंज मिलती हो वहाँ ही ऑनलाइन क्लास के लिए बैठना है और कोशिश करें कि ऑनलाइन क्लास जिस टीचर का है उसे कॉल न करें। अगर आप कॉल करते हैं और टीचर वो कॉल अटेंड करती है तो क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, टीचर क्लास से लेफ्ट हो जाती है। कभी कभी नेटवर्क इशू के कारण पेरेंट्स ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते। ऑनलाइन क्लास का क्लास वर्क और होमवर्क बाद में ग्रुप पे सेंड किया जाए। This is the time to meet our special person, Reverend Sister Lizzie, Principal of St. Joseph Convent School. She has a big good message for all dear parents and sweet little kids. Listen carefully. आदरणीय सिस्टर्स, टीचर्स और सबसे महत्वपूर्ण सभी पालक वर्ग और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा हृदयपूर्वक नमस्ते। आज का समारोह हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही आपके लिए भी महत्व रखता है। बच्चे तो भगवान की रूप होते हैं। ये हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा अहम उपहार है। छोटे बच्चे मतलब मिट्टी का गोला इस तरह होते हैं। इन्हें ठीक ढंग से आकार देना हमारा कर्तव्य होता है, तभी जाकर एक अच्छी मूर्ति तैयार होती है। इसलिए बच्चे आपको तो है, अब वह हमारी भी जिम्मेदारी बन चुके हैं। आपके बच्चों ने सही जगह पर अपने जीवन का कदम रखा है। इसी बात को समझते हुए मैं आपके सामने ज्ञान, शिक्षा, इस पर 2 शब्द कहना चाहूँगी। इंसान आजीवन कुछ न कुछ सीखता है। इसी आधार पर बच्चे का पहला स्कूल उसका घर होता है। माता पिता से बच्चों के मन में शिक्षा ग्रहण करने की उम्मीद जगाना यह माता पिता का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए आप लोग बच्चे के मन में ज्ञान का बीज बो देते हैं और उसी बीज को पौधे से लेकर पेड़ में रूपांतर करने का कार्य शिक्षक वर्ग करते हैं। शिक्षा मतलब सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान नहीं होता, तो बच्चों के सभी गुणों का विकास मतलब शिक्षा ग्रहण करना होता है। इसी माध्यम से बच्चों को प्रगति पथ पर ले जाने का कार्य हमारा होता है। किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए उस कार्य का नियोजन करना महत्वपूर्ण होता है। मुझे कहने में आनंद हो रहा है कि वही नियोजन पूर्ण कदम आपने हमारे स्कूल में रखा है। आपने आपके बच्चों को भविष्य का सपना अब हमारे जोसेफाइन फैमिली के हाथ में दिया है। इससे यह प्रतीत होता है कि आपका हमारा ऊपर पूर्ण विश्वास है। हम सदैव आपके बच्चों को शिक्षा, संस्कृति, सही राह दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं सभी माता पिताओं को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे के भविष्य के प्रति जागरूक रहकर सब उपस्थिति हुए हैं। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे हाथ आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य करने में सफल रहे। इस सफलता के लिए आप और हम मिलकर ही इन बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप निश्चित रूप से हमारे साथ रहेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों से एज ए पेरेंट्स कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट ईयर से जैसे कोरोना जैसी महामारी फैल रही है, उसमें हम सभी पेरेंट्स को टेंशन आ गया था कि अभी हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे उनकी स्टडी हो पाएगी। पर हमारे टीचर्स लोगों ने जैसे सोचा है वो ऑनलाइन वीडियोस सेंड करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, वो उनकी तरफ से हमारे बच्चों के लिए 100% दे रहे हैं, उनको पढ़ाना चाहते हैं।
तो हमें भी उनका सपोर्ट करना चाहिए और वो जैसे रूल्स डिसिप्लिन बता रहे हैं वो सब फॉलो करना चाहिए। फर्स्टली कि हमें मीटिंग टाइम पे ज्वाइन करनी चाहिए। जो टीचर्स लोग टाइम देते हैं उसी टाइम पे आप ज्वाइन करो। बच्चों को सिखाओ कि अपना क्लास स्टार्ट हो रहा है, टीचर्स आए हैं सामने, उनको बताओ और अच्छे से डिसिप्लिन में बैठाओ बच्चों को। उसके बाद अपना माइक म्यूट रखना चाहिए, माइक को अनम्यूट नहीं करना है। अगर टीचर्स बच्चों को क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं तो पेरेंट्स ने सुनना है कि हमारे बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं, उनको क्या समझ रहा है क्या नहीं, ये सब हमने देखना चाहिए। क्योंकि उसमें माइक अनम्यूट करके बच्चे अगर आंसर दे रहे हैं तो सारा क्लास डिस्टर्ब होता है, उसमें आवाज भी प्रॉपर नहीं आती, टीचर भी डिस्टर्ब होते हैं, बाकी के बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ऐसे ना करते हुए पेरेंट्स ने देखना है कि अपने बच्चों को कितना समझ रहा है और वो क्या जवाब दे रहा है। और जहाँ प्रॉपर रेंज है वहीं पे बच्चों को बिठाना चाहिए और पेरेंट्स ने भी बैठना चाहिए, ताकि क्लास का जो भी है वॉइस वगैरह सब क्लियर सुनाई दे, प्रॉपर रेंज में रहे तो क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा, अपने को सब समझेगा। बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, प्रॉपर ड्रेसअप करके फ्रेश होके फिर बैठो, अच्छे से बैठो। और जो भी है खाना पीना, कोई बीच में पानी पीता है, कोई क्या करता है, ये सारी चीजें गलत है। जो भी है वो क्लास स्टार्ट होने के पहले कर लो। टीचर्स आने के बाद पूरा फोकस अपने स्टडी पे, टीचर्स अपने को क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा रहे हैं, अब हमको क्या करना है, वो सारा ध्यान रहना चाहिए, तो बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। Respected all dear sisters, dear parents, teachers, and my dear friends, thank you very much for joining us. We are happy to be with you. I hope your presence will be with us forever like this in online program. Once again, thank you for your participation and for your support. Thank you.